आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 पैथोजेनेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पैथोजेनेसिस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है अगर वो कैपेबल है ऑफ कॉजिंग डिजीज़, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म हाईली पैथोजेनिक होते हैं। दैट इज़ दे ऑफन कॉज डिजीज़, जबकि कुछ जो होते हैं वो डिजीज़ नहीं कराते, रेयरली। अपॉर्चुनिस्टिक जो पैथोजेंस हैं वो रेयरली अगर होंगे तो कॉज कराएंगे डिजीज़ सिर्फ इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल में, लेकिन सीरियस इन्फेक्शन करवाएंगे इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में। ये अपॉर्चुनिस्ट जो हैं ये फ्रीक्वेंटली मेंबर होते हैं बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा का। ओरिजिन ऑफ द टर्म अपॉर्चुनिस्टिक रेफर करता है टू द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय द रिड्यूस्ड होस्ट डिफेंस टू कॉज डिजीज़। वायरुलेंस क्वान्टिटेटिव मेजर है पैथोजेनिसिटी का, और ये मेजर होता है बाय द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो रिक्वायर होते हैं टू कॉज द डिजीज़। 50% लीथल डोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो हमें चाहिए टू किल हाफ ऑफ द होस्ट, एंड 50% इन्फेक्शस डोज आईडी इज द नंबर जो नीडेड टू कॉज इन्फेक्शन इन हाफ द होस्ट। ऑर्गेनिज्म विथ लोअर LD by 50 lethal dose are said to be more virulent than those with the higher lethal dose, क्योंकि few organism चाहिए to cause death or disease. Infectious dose of an organism required to cause disease varies greatly among the pathogenic bacteria. For example, Shigella and Salmonella both cause diarrhea by infecting the GIT, but infectious dose of Shigella is less than 100 organisms, whereas the infectious dose of Salmonella is order of 1 lakh organisms. The infectious dose of the bacteria depend primarily upon the virulence factor. Example, whether the villi allow them to adhere well to the mucous membrane, whether they produce exotoxin or endotoxins, whether they possess a capsule to protect them from phagocytosis, or whether they can survive various non-specific host defense such as acid in the stomach. Word parasite के दो uses हैं. Within the context of this chapter, the term refer to the parasitic relationship bacteria का to the host cell, that is presence bacteria की detrimental है to the host cell. Bacteria that are human pathogens can be thought of therefore as parasite. Some bacterial pathogens are obligate intracellular parasite, Chlamydia, Rickettsia, because they can grow only within the host cell. Many bacteria facultative parasites हैं क्योंकि ये grow करते हैं within the cell, outside the cell या bacteriologic medium. The use of the term parasite refer to the protozoa, the helminths, in which are discussed in the part of 6 of this book. Why do people get infectious diseases? People get infectious diseases when microorganisms overpower our host defenses. That is, when the balance between the organism and the host shifts in the favor of organism. The organism or its products are then present in sufficient amount to induce various symptoms such as fever, inflammation, which we interpret as those of an infectious disease. From organism's perspective, दो critical determinant होते हैं in overpowering the host are the number of organism to which the host or person is exposed and the virulence of these organisms. Clearly, greater the number of the organism, greater the likelihood of infection. Important to realize, however, that small number of highly virulent organism can cause disease just as large number of less virulent organism can. The virulence of the organism is determined by its ability to produce various virulence factor जो produce करते हैं, several of which were described previously. Production specific virulence factor की determine करती है what disease the bacteria cause. For example, strain Escherichia coli का produce करता है one type of exotoxin जो cause कराता है watery non-bloody diarrhea, जबकि different strain E. coli का produce करता है another type of exotoxin जो cause करता है bloody diarrhea. ये chapter describe करता है several important example specific diseases related to the production of various virulence factors. From the host perspective, though main arms of our host defense are innate and acquired immunity. Acquired में दोनों antibody mediated and cell mediated आ जाती है. A reduction in the functioning of any of the component of our host defense shift कर देगा balance in the favor of the organism और increase कर देगा chance of infection of disease. कुछ organism cause कराते हैं reduction in our host defense, जैसे कि genetic immunodeficiency जैसे A gamma globulinemia and acquired immunodeficiency जैसे AIDS, drug induced immunosuppression patients में with organ transplant and cancer patients जो receive कर रहे हैं chemotherapy. Patient diabetes के और autoimmune disease के भी reduced host defense होता है. मैनी इंस्टेंस में पर्सन एक्वायर करता है ऑर्गेनिज्म को, लेकिन इन्फेक्शस डिजीज नहीं होती क्योंकि होस्ट डिफेंस सक्सेसफुल होता है. इसको एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस ये कॉमन होते हैं, टिपिकली रिकॉग्नाइज होते हैं बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म इन द पेशेंट सीरम. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. टर्म इन्फेक्शन हैज़ मोर देन वन मीनिंग. एक मीनिंग ये है कि ऑर्गेनिज्म हैज़ इन्फेक्टेड द पर्सन, दैट इज ऑर्गेनिज्म हैज़ एंटर्ड द बॉडी ऑफ दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल,
पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है विथ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ लो पैथोजेनिसिटी and not develop symptom of disease. Another meaning of the term infection is to describe the infectious disease. जैसे कि person कहे I have an infection. इस इंस्टेंस में infection और disease interchangeably यूज़ होती है, लेकिन ये important है to realize कि according to the first definition word infection का ये मतलब नहीं है it have to be equated with the disease. Usually meaning will be apparent from the context. बैक्टीरिया कॉज कराते हैं दो मेजर मैकेनिज्म, एक तो टॉक्सिन प्रोडक्शन और दूसरी है इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन। टॉक्सिन फाइल होते हैं दो जनरल कैटेगरीज में, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो रिलीज होते हैं बाय द सेल, जबकि एंडोटॉक्सिन लिपोपोलीसेक्राइड्स हैं जो बनाते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल। एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड एंड कॉक्साई में होते हैं और ये एक्टिवली रिलीज नहीं होते सेल से और कॉज कराते हैं फीवर, शॉक एंड अदर जनरलाइज सिम्टम। दोनों एक्सो और एंडोटॉक्सिन देमसेल्फ कॉज कराते हैं सिम्टम्स। प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन द होस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। इन्वेजिव बैक्टीरिया जबकि जो है ऑन द अदर हैंड ग्रो टू लार्ज नंबर लोकली एंड इंड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जिसमें एरिथेमा, एडिमा, वार्मथ और पेन होगा। इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन डिस्कस हुई हैं लेटर इन द सेक्शन एंटाइटल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। मेनी बट नॉट ऑल इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शन आर कम्युनिकेबल, दैट इज ये स्प्रेड होते हैं होस्ट टू होस्ट। फॉर एग्जाम्पल टीबी कम्युनिकेबल है, स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन एयरबोर्न ड्रॉपलेट में बाय कफिंग। लेकिन बॉटुलिज्म नहीं है क्योंकि वो एक्सोटॉक्सिन जो बनता है ऑर्गेनिज्म में इन द कंटेमिनेटेड फूड ओनली अफेक्ट्स दोज हु आर ईटिंग दैट फूड। इफ़ अ डिजीज इज हाईली कम्युनिकेबल उसको हम कंटीजियस कहेंगे। इन्फेक्शन एपिडेमिक है अगर वो होता है मोर फ्रीक्वेंटली देन यूजुअल, मतलब यूजुअल से बहुत ज़्यादा अगर होगा, और उसको पेंडेमिक कहेंगे अगर वो वर्ल्ड वाइड होगा। इंडेमिक इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है एट द लो लेवल इन द स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। इन एडिशन वो इन्फेक्शन जो रिजल्ट करता है ओवर्ट सिम्टम्स में, मैनी आर इनअपेरेंट या सब क्लिनिकल एंड कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर या आइसोलेटिंग द ऑर्गेनिज्म। कुछ इन्फेक्शन रिजल्ट करते हैं लेटर स्टेट में आफ्टर विच रीएक्टिवेशन ऑफ द growth of the organism and recurrence of symptom may occur. Certain other infection लीड करते हैं chronic carrier state जिसमें organism continue करेंगे to grow with or without producing symptom in the host. Chronic carrier जैसे typhoid, very important source of infection है of other and hence a public hazard. Determination of whether organism recover हुआ है from patient is actually the cause of the disease involves and awareness of two phenomena, नॉर्मल फ्लोरा और कॉलोनाइजेशन। मेंबर नॉर्मल फ्लोरा के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं बॉडी को और वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिक साइड। जब ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होता है फ्रॉम पेशेंट स्पेसिफिक स्पेसिमेन, क्वेश्चन ऑफ वेदर इट इज अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा इज इंपॉर्टेंट इन इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग। कॉलोनाइजेशन रेफर करती है प्रेजेंस न्यू ऑर्गेनिज्म की जो ना के मेंबर है नॉर्मल फ्लोरा के, ना ही कोई सिम्टम कॉज करा रहे हैं। ये डिफिकल्ट होता है क्लिनिकली डायलेमा to distinguish between the pathogen and a colonizer, especially in specimen जो obtain होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, जैसे थ्रोट कल्चर या स्पुटम कल्चर। अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। मोस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस एक्वायर होते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, जबकि अदर जो है वो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा and as such are not transmitted directly prior to the onset of infection. General sequence stages of the infection is as follow. Number 1, transmission external source से into the portal of entry. Number 2, evasion primary host defense की, जैसे स्किन या स्टमक एसिड की। adherence म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ by bacterial villi. colonization उसकी बाद growth of the bacteria at the site of adherence. disease symptom caused by toxin production या invasion accompanied by inflammation. होस्ट रिस्पॉन्स दोनों स्पेसिफिक भी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लास्ट होता है प्रोग्रेशन या रेजोल्यूशन ऑफ द डिजीज। सबसे पहले देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस ट्रांसमिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन बैक्टीरिया की या अदर इन्फेक्शन एजेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ परस्पेक्टिव, क्योंकि इंटरप्टिंग द चेन ऑफ द ट्रांसमिशन एक्सीलेंट तरीका होता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज। ह्यूमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैनी इन्फेक्शियस डिजीज का है ह्यूमन टू ह्यूमन, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज आल्सो ट्रांसमिट होती है नॉन ह्यूमन सोर्स से, जैसे कि सोइल, वाटर, एनिमल से। फोरमाइट्स जो है वो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि टॉवल सर्व करते सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। टेबल 7.1 में देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। इस टेबल में देखेंगे विजिबल है। आल्दो कुछ इन्फेक्शन कॉज होते हैं बाय मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, मोस्ट एक्वायर होते हैं ट्रांसमिशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। पैथोजन एग्जिट करते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट को मोस्ट फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी और या जीआईटी ट्रैक से। हेंस ट्रांसमिशन जो है ना वो न्यू होस्ट को यूजुअली होती है या एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या फीकल कंटेमिनेंट ऑफ द फूड एंड वाटर।
ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं आल्सो बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यूरिन, स्किन कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कंटेमिनेटेड नीडल या इंसेक्ट बाइट। ट्रांसफर ब्लड का या ट्रांसफ्यूजन से या शेयरिंग नीडल ड्यूरिंग आईवी ड्रग यूज कैन ट्रांसफर वेरियस बैक्टीरियल वायरल पैथोजन। स्क्रीनिंग डोनेटेड ब्लड की ट्रिपोनेमा पैलिडियम के लिए, HIV के लिए, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, वेस्ट नाइल वायरस को ग्रेटली रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय दीज ऑर्गेनिज्म। मेजर बैक्टीरियल डिजीज जो ट्रांसमिट होती है टिक्स से यूनाइटेड स्टेट में वो है लाइम डिजीज, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, एहरलिचियोसिस, रिलैप्सिंग फीवर एंड टुलारीमिया। इनमें से 5 लाइम डिजीज इज़ फार मोस्ट कॉमन। टिक्स ऑफ द जीनस एक्सोड्स जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं 3 तरह के इन्फेक्शन, लाइम डिजीज़, एरकाइलोचियोसिस, बेबसियोसिस एंड प्रोटोजोआ डिजीज। बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर माइक्रोब ट्रांसमिट होते हैं मदर से ऑफस्प्रिंग को भी। इस प्रोसेस को कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। 3 मोड बाय विच ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसमिट होते हैं वर्टिकली, वो है प्लेसेंटा, बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द बर्थ एंड वी आर ब्रेस्ट मिल्क। टेबल 7 में मेडिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसमिट होते हैं वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है बाय पर्सन टू पर्सन, दैट इज़ नॉट फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। 4 इंपॉर्टेंट पोर्टल ऑफ एंट्री हैं। रेस्पिरेटरी होता है, GIT, जेनाइटल एंड स्किन। इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वाटर आर डिपिक्टेड इन 7.4। ये हैं वो डिजीज़ जो होती हैं बाय स्प्रेड बाय वाटर। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फूड वो टेबल 5 में है, 7.5। और जो इंसेक्ट्स होती हैं वो टेबल 7.6 में। स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब होता है इन सब्सिक्वेंट सेक्शन डिवोटेड टू दैट ऑर्गेनिज्म। एनिमल भी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को। दे कैन बी आइदर द सोर्स, रिजर्वायर या मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ जो एनिमल से होती हैं एज अ रिजर्वायर उनको हम कहते हैं जूनोसिस, मतलब वो डिजीज़ जो जिनके लिए एनिमल्स रिजर्वायर है। इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज़ जो है वो टेबल में है। सबसे पहले हम इनको डिटेल में देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन टू ह्यूमन में सबसे पहले है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें है गोनोरिया। ये इंटीमेट कॉन्टैक्ट सेक्सुअल एंड पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल से स्प्रेड होगा। दूसरा होता है नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इससे डाइजेंट्री होती है। ये होता है फीकल ओरल रूट, जैसे एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन फीसेस फिर इंजेस्ट हो जाए फूड या वाटर में। दूसरा है ट्रांसप्लेसेंटल, कंजेनाइटल साइफिलिस इससे होती है। बैक्टीरिया क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट द फीटस। ब्लड बॉन्ड में साइफिलिस, ट्रांसफ्यूज ब्लड या IV ड्रग जो है वो ट्रांसफर होती है बैक्टीरिया को, वायरसेस को। स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड फॉर द ट्रांसफ्यूजन ग्रेटली रिड्यूस कर देती है रिस्क। अब नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन में सबसे पहले सॉइल सोर्स है, उसमें टेटनस होता है, स्पोर सॉइल में होते हैं, वुंड से स्किन में एंटर करते हैं। वाटर सोर्स में लीजियोनेरिस डिसीज़, बैक्टीरिया जो है वो वाटर में एरोसोल में इनहेल हो जाता है इनटू द लंग्स। लीजियोनेरिस सीरियस टाइप ऑफ नमूनिया होता है लंग्स का। फिर है एनिमल सोर्स, उसमें है डायरेक्टली जो होते हैं वो है कैट स्क्रैच फीवर। इसमें बैक्टीरिया जो वो एंटर करेगा कैट के स्क्रैच से या इंसेक्ट वेक्टर जैसे लाइम डिजीज़ जो टिक बाइट करेगी तो बैक्टीरिया एंटर करेगा। और एनिमल एक्सक्रीटा से हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है बाय E. coli। बैक्टीरिया कैटल का और फीसेस का इंजेस्ट हो जाता है इन अंडर कुक्ड हैमबर्गर। और लास्ट होता है फॉर्माइट सोर्स, उससे स्टेफिलोकोकल स्किन इन्फेक्शन होता है, जैसे टॉवल वगैरह जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है इनटू स्किन। ये जो यूरेमिक सिंड्रोम है इसमें स्मॉल ब्लड वेसल हमारी किडनी की जो वो डैमेज हो जाती है और इन्फ्लेम हो जाती है। नेक्स्ट अब अगर हम देखें वर्टिकल ट्रांसमिशन, उसमें ट्रांसप्लेसेंटल है विद इन द बर्थ कैनाल या एट द टाइम ऑफ बर्थ और ब्रेस्ट मिल्क में। ट्रांसप्लेसेंटल में सबसे पहले हम बैक्टीरियल देखें तो इसमें आ जाता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ट्रिपोनेमा पैलिडियम से कंजेनाइटल साइफिलिस होती है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस कॉज कराते हैं। वायरस 2 होते हैं ट्रांसप्लेसेंटरी, जो साइटोमेगालो वायरस और पार्वो B19 वायरस। पार्वो से जो हाइड्रोप्स फिटलिस होगी और साइटोमेगालो वायरस से कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। और एक पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, इससे टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगी। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। नेक्स्ट होता है विद इन बर्थ कैनाल या एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उसमें है सबसे पहले बैक्टीरियल देखें तो 4 हैं। स्ट्रेप्टोकोकस गैलिसाइट, ये नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस कॉज कराएगा। शर्शा कोलाई भी नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। क्लेमाइडा ट्रेकोमेटिस, ये कंजक्टिवा और नमूनिया कॉज कराता है। नीजेरिया गोनोरिया कंजक्टिवाइटिस कॉज कराता है। जो वायरस हैं वो 3 हैं, उसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो स्किन CNS से डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन कॉज कराता है। उसके अलावा जो है हेपेटाइटिस B वायरस है, वो हेपेटाइटिस B कॉज कराएगा। एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज कराएगा। एक फंगल है, एक एंटी एल्बिकन थ्रश होगी। ब्रेस्ट मिल्क जो ट्रांसफ़र होता है, ब्रेस्ट मिल्क से जो है वो एक बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ओरियस, ये ओरल या स्किन इन्फेक्शन कॉज कराता है। और साइटोमेगालो वायरस भी होता है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। ह्यूमन T सेल ल्यूकेमिया भी ब्रेस्ट मिल्क से होता है, वो है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज कराता है। नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है वो देखेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री।
इसमें एक बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कराता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मेनिंजाइटिस 2 कराते हैं बैक्टीरिया, वो है नीजेरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी। एक टीबी कॉज कराता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब वायरस है इन्फ्लुएंजा कॉज कराना, इन्फ्लुएंजा वायरस। कॉमन कोल्ड का राइनो वायरस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराने का एप्स्टेन बार वायरस। फंजाई 2 होते हैं रेस्पिरेशन में, हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से, और कोक्साइडियोडाइम डोमाइकोसिस होती है कोक्साइडियोड्स इमिटस से। अब जीआईटी से हम देखें, शिगेला डिजेंट्रिया जो डिजेंट्री कराता है बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफाइड कराएगा, और तीसरा बैक्टीरिया वाइब्रो कोलरा, वो कोलरा कॉज कराएगा। वायरस हेपेटाइटिस ए है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होगी। पोलियो वायरस से पोलियोमाइलाइटिस, ट्रिकिनेला स्पाइरालिस से ट्राइकोनोसिस, ये हेलमेंथ है। स्किन से एक तो टेटनस होता है, ट्रांसफर क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई से। रॉकी माउंटेन जो है वो रिकेट्सी से होता है ट्रांसफ़र बैक्टीरिया से। रेबीज़ एक वायरस है जो स्किन में रेबीज़ वायरस से ट्रांसफ़र होता है, और टीनिया पेडिस एथलेटिक्स फूड जो है वो फंगस है। ट्राइकोफाइटोन रूब्रम और प्लाज्मोडियम विवेक्स से मलेरिया। जेनाइटल से गोनोरिया होती है बाय बैक्टीरिया नीजेरिया गोनोरियाई। साइफिलिस होती है बाय बैक्टीरिया ट्रिपोनेमा पैलिडियम। यूरेथ्राइटिस बाय बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। जेनाइटल वार्ट होते हैं बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और वेजिनाइटिस बाय कैंडिडिया एल्बिगन।